Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 7 of class 8 history, and the chapter's name is Civilizing the Native, Educating the Nation. So basically what we are going to see in this chapter is that how Britishers changed our education system. So as you can see from the chapter's name that Civilizing the Native. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश के लोगों को, नेटिव्स मतलब जो हमारे यहाँ देश में रह रहे हैं, जो किसी भी देश के निवासी होते हैं, तो वो होते हैं नेटिव्स। तो द ब्रिटिशर्स वांटेड टू सिविलाइज द नेटिव्स ऑफ इंडिया। तो वो कहते थे कि हमें इंडियंस को सभ्य बनाना है, वो सिविलाइज नहीं है, वो असभ्य हैं। ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था, ऐसा हम थे नहीं वैसे, ठीक है, हम काफी सिविलाइज थे। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हम बात करते हैं वो इंडिया का ही पार्ट था, राइट। सो ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था कि हम सिविलाइज नहीं है और उन्हें हमें सिविलाइज करने की जरूरत है। और वो क्या सोचते हैं कि हमें सिविलाइज कैसे किया जा सकता है? बाय एजुकेटिंग। तो वो कहते हैं कि सिविलाइज करेंगे हम नेटिव्स को कैसे? हम जब लोगों को एजुकेट करेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसी बारे में, दैट हाउ ब्रिटिशर्स एजुकेटेड, हाउ नॉट एक्चुअली एजुकेटेड, how Britishers changed the education system of India according to them, and how they manipulated the minds of Indians so that they can make the people of India according to them. So if you haven't watched the earlier chapters, then you can click on the I button. There you will find the playlist, because each and every chapter of this book is related, right? So what you are going to see in this chapter is kind of related to the earlier chapter. So I would suggest you to first go and watch all those earlier chapters if you haven't yet. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Civilizing the Native, Educating the Nation. I have already explained you the meaning of the chapter and what we are going to see. Now let's start. So basically this is going to be an introductory video like we do for all our chapters. So in the earlier chapters, you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals. So in different chapters, we have studied that how the British rule affected the Rajas, the Nawabs, the peasants and the tribals. कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी वजह से इन सभी लोगों की, राजा की, नवाब की, पेजेंट की, जो किसान होते हैं उनकी लाइफ में, ट्राइबल्स की लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट पड़ा, किस तरीके से उनकी जो लाइफ्स हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो गई, ये सब कुछ जो है हम पढ़ चुके हैं। In this chapter, we will try and understand what implications it had for the lives of student. और अब इस चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि इंडिया का जो स्टूडेंट था, जो विद्यार्थी था, जो छोटे छोटे बच्चे थे स्कूलों में जाने वाले, उनकी लाइफ पे ब्रिटिशर्स का क्या इफेक्ट पड़ा। For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो टेरिटरीज हैं, इंडिया के जो स्टेट्स वगैरह हैं, सिर्फ उन पे ही कब्जा नहीं करना चाहते थे, और साथ ही साथ सिर्फ मतलब कि वो रेवेन्यूज पे कब्जा और टेरिटरीज पे कब्जा नहीं चाहते थे, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ चाहते थे। They also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. तो वो ऐसा सोचते थे कि उनका एक कल्चरल मिशन है। कैसा कल्चरल मिशन? कि उन्हें हमारे जो देश के नेटिव्स हैं, जो निवासी हैं, उन्हें सिविलाइज करना है, सभ्य बनाना है। उनके अकॉर्डिंग हम सभ्य नहीं थे, ठीक है, बट उनके अकॉर्डिंग, हाँ, आई एम रियली फोकसिंग ऑन दिस कि उनके अकॉर्डिंग हम सिविलाइज नहीं थे, बट हम वैसे थे, ठीक है। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज, से दे वांटेड टू चेंज our customs and values, the practices which we were following from our generations. तो वो लोग क्या चाहते थे कि हम अपने जो कस्टम्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो वैल्यूज हैं, वो सब छोड़ दें और उनके अकॉर्डिंग जो वो प्रैक्टिसेस करते हैं, जिस तरीके के उनके ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उनको फॉलो कर लें, क्योंकि उनके हिसाब से जो भी काम हम करते थे, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ जी रहे थे, वो सिविलाइज वाली नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी। रिमेंबर आई टॉट यू इन द ट्राइबल्स चैप्टर, कि जिसमें हमने ट्राइबल्स वगैरह वाले में पढ़ा था कि ट्राइबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से द ब्रिटिशर्स वर आस्किंग द ट्राइबल्स टू give up their traditional practices, and they were calling those traditional practices as bad practices. वो कह रहे थे कि आप अपनी bad practices छोड़ दो, ताकि आप पे जितनी भी restrictions वगैरह लगी हैं वो ना लगे, वो सारी हट जाएंगी और आप एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाओ। तो वो लोग क्या फोकस कर रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम अपने ट्रेडिशंस वगैरह छोड़ दो, और वो हमारे ट्रेडिशंस को बैड प्रैक्टिसेस कह रहे थे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि हम जिस तरीके से अपनी लाइफ मतलब इतनी सदियों से जीते आ रहे हैं उसको छोड़ दें और उनके अकॉर्डिंग बदल जाएं। What changes were to be introduced? बट अभी तक जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें ये समझ नहीं आया था कि हम इन लोगों को चेंज तो करना चाहते हैं, we want to civilize the natives, but
दे वर नॉट क्लियर हाउ टू डू दैट, कि अब इन चेंजेस को कैसे लाया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये चेंजेस आ जाए. हाउ आर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, civilized and made into what the British believed were good subjects. तो अब ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि ठीक है, हमने ये तो सोच लिया है कि हमें इन लोगों को चेंज करना है, बट ये चेंज आएगा कैसे, किस तरीके से इंडियंस को हमें एजुकेट करना है, उन्हें सिविलाइज बनाना है, ताकि हम उन्हें वो बना सकें जैसा कि गुड सब्जेक्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट मतलब जैसे प्रजा, किंग होता है राजा और किंग की प्रजा होती है, तो प्रजा को हम सब्जेक्ट्स कहते हैं. तो ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि अब ऐसा क्या किया जाए ताकि इन नेटिव्स को, इन इंडियंस को एक अच्छा सब्जेक्ट बनाया जाए, अच्छी प्रजा बनाई जाए. तो वो भी ये क्लियर नहीं थे कि किस तरीके से करना है. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चंस. तो ब्रिटिशर्स को भी इन सभी क्वेश्चंस का कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, लोगों को चेंज करने के लिए, उनके प्रैक्टिसेस को चेंज करने के लिए, इस सब चीज का उनके पास अभी कोई क्लियर सिंपल आंसर नहीं था. दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स, और बहुत ही दशकों तक, काफी सालों तक वो इस क्वेश्चन पे डिबेट करते रहे, वाद विवाद करते रहे, मतलब कि सोचते रहे कि भाई आखिरकार इन लोगों को किस तरीके से एजुकेट किया जाए, कैसे क्या किया जाए ताकि इन लोगों को हम अपने अकॉर्डिंग बना सकें, वैसा बना सकें जो हम इन्हें चाहते हैं, राइट. So from the next video we are going to start with our chapter, and the topic would be how the British saw education, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते थे और वो अपने नजरिए से क्या चेंजेस वगैरह करना चाहते थे. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे.